Hi guys, welcome or welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. Here's my February planner and here's my weekly planner. So actually I was planning everything and अब January से February का calendar भी change कर ही देते हैं because today is like this vlog is of 3rd of February. I was having my brother's weddings. I was busy in that, so I was not shooting. So many things was happening. So now I'm getting back on track. So I started off by planning everything, planning all my targets, all like everything, which test I will be giving, everything I wrote in my planner. And then I made my today's target. And in today's target, I will be revising my gravitation, like complete gravitation chapter. Then I will be moving on to coordination compound. And in biology, I haven't decided like photosynthesis or principle of inheritance. One of those chapters I will be revising. And guys, we all have dreamed of becoming a doctor, but like so many of you thought of going to abroad, like pursuing MBBS abroad, but worried about the cost of studying abroad. Well, I have some amazing news for you. Like a cat fly powered by Physics Wala is bringing you MBBS Abroad Scholarship Test 2025, the ultimate MBBS Abroad scholarship opportunity. So this is your chance to win scholarship worth up to rupees 1.25 CR. Yes, you heard it right, 1.25 CR to support your journey to becoming a doctor. And that's not all. Winners will also receive a scholarship for MBBS abroad, a brand new laptop, plus Meded FMG coaching subscription, like everything you need to be as a successful future doctor. So guys, this scholarship test is happening on 16th of February 2025, and trust me, this is like the best opportunity. Go and check out the link in the description box, quickly sign up and just make your dream happen by MST 2025. So see you on the test day. तो गाइस अगर क्विकली एक 1 मंथ प्लान की बात करें, हाउ यू कैन एग्जीक्यूट एवरीथिंग इन जस्ट 1 मंथ, हाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट होल सिलेबस, लाइक कंप्लीट होल सिलेबस। जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं उन्हें भी कंप्लीट करना है, जो पढ़ लिए उन्हें रिवाइज करना है, लाइक revising from zero till last chapter in the whole February. How I am gonna do is that from 8th of February I am having my PMT test 2. I had already showed you guys all about PMT test series in one of my previous video. I can attach the link here. You can click on this I button and get the that vlog. Meanwhile you can understand here कि जैसे कि अभी मेरे मॉक टेस्ट 1 2 और 3 हुए थे, तो अब इनका जो भी सिलेबस है ना वो ऐसे रिव्यू के फॉर्म में आ रहा है कि जैसे मेरा मॉक टेस्ट 4 है तो उसमें ये चैप्टर्स आ रहे हैं नए, इलेक्ट्रोस्टैट, ग्रेविटेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फोटोसिंथेसिस, देन POI, प्लस इनके साथ जो टेस्ट 1 का ये सिलेबस था ये रिव्यू में आ रहा है कि हमें इस टेस्ट मतलब ये बेसिकली आएगा, इसका 20%, 10 से 20% इन चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो जस्ट दैट कि अब यहाँ से मॉक टेस्ट 4 से लेके मॉक टेस्ट 8 तक में हमारा पूरा सिलेबस कवर है। तो ऑल आई कैन डू इज़ दैट सिंपली हर मॉक टेस्ट में 7 डेज़ का गैप है, तो 4 वीक्स एंड यू आर गुड टू गो। तो ये तुम्हारे 1 वीक का टारगेट है। दीज मैनी चैप्टर्स, like 4 chapters in biology, 4 chapters in botany, 3 के around in zoology, and here is also like kinematics, then UND, then 4 here. So you have to actually work hard for this. थोड़ा टफ होना पड़ेगा खुद से। अगर एकदम ज़ीरो से हो तो मैं डेडिकेटेडली 16-17 घंटे देने पड़ेंगे पढ़ने के लिए, पर यहाँ से तुम एक रफ आइडिया लगा सकते हो, तुम अपने टारगेट कैसे सेट कर सकते हो। प्लस तुम लोग चाहोगे तो मैं ये मॉक टेस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूँगी, किसी को चाहिए तो वो वहाँ से दे सकता है कंप्लीट करने के बाद। सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। एंड जो मैंने भी अपना फैब्रुअरी का प्लानर दिखाया था उसमें भी बस इन्हीं के लेक्चर्स डिवाइड कर रखे हैं। जस्ट दैट जैसे जो रिव्यू में आ रही है मेरे चैप्टर कंप्लीट हो गए तो मैंने इनको रिविजन के तौर पे डाल दिया है और इनको मेन डाल दिया कि मेरा आज का टारगेट बेसिकली मेन ये है कि मैं पूरा ग्रेविटेशन कंप्लीट करूँ, उसके बाद इनका रिविजन करूँ।
तो तुम भी इसके अकॉर्डिंग अपना डिवाइड कर सकते हो। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं तुम्हें प्रॉपर डिवाइड करके दे दूँगी कि हाउ यू कैन एक्चुअली डे बाय डे के टारगेट कैसे दिखेंगे तुम्हारे, वो कर दूँगी मैं इफ़ यू गाइस वांट। एंड मीनवाइल आई विल बी कंप्लीटिंग माय ग्रेविटेशन, सो लेट्स कंटिन्यू। So now adding on to that, I'm planning to do a 21 days biology challenge. Like we recently got done with our challenge, and now this time I want to do a quite a bit like academically challenge, because अभी तक हम challenge कर रहे होते थे study hours related, consistency related। अभी तो लास्ट के 3 मंथ्स में हम सबके study hours काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी भी कहीं ना कहीं fear की वजह से आ ही जाती है। नाउ वी हैव टू वर्क ऑन आवर सिलेबस कंप्लीशन, जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे सकें, उनका अच्छे से एनालिसिस कर सकें एंड देन उन पे वर्क कर सकें। तो लास्ट मंथ का तो देखो यही रहता है कि सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट कि सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद यू हैव टू कीप ऑन गिविंग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद जो भी वीक चैप्टर्स निकल कर आ रहे हैं उन पर वर्क करना है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट सिलेबस कंप्लीशन, तो अब में से मेजॉरिटी लोग होंगे जिनका अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ होगा। जैसे कि मेरा भी सिलेबस अभी तक 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, 80% कंप्लीट हो गया है, 20% रफ एंड टफ कंप्लीट हुआ है। तो मुझे फरवरी में लग के एक बार अपना पूरा सिलेबस 100% डन एंड डस्टेड करना था, कि एक बार मैंने सारे चैप्टर पढ़ के डाले, जो नहीं पढ़े थे वो पढ़ लिए और जो पढ़ चुके हैं वो एक बार रिवाइज कर लिए। सो इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ डन एंड डस्टेड। तो मैं बायोलॉजी के लिए तुम लोग के साथ एक चैलेंज लेना चाहती थी। वैसे तो मैं ओवरऑल चैलेंज लेना चाहती थी, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स में सबकी अपनी अपनी पेस होती है। मुझे नहीं पता तुमने पहले से कितना पढ़ रखा है कितना नहीं। जैसे मैंने अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में पढ़ रखा है, तो मैं कहीं पे वन शॉट लगा रही होती हूँ, कहीं पे डिटेल लगा रही होती हूँ। तो इसलिए आई एम लाइक मैंने ये डिसाइड किया कि हम शायद केमिस्ट्री फिजिक्स अभी नहीं कर सकते हैं, पर बायो का चैलेंज हम सब कर ही सकते हैं साथ में। किसी ने कितना भी पढ़ा हो, किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो, तो भी वो वन शॉट से पढ़ के उस चैप्टर में एकदम परफेक्शन ला सकता है। एंड किसी ने पढ़ भी रखा हो तो वो रिविजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चीज़ें डन एंड डस्टेड कर सकते हैं। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि हम 21 डेज चैलेंज ले रहे होंगे फ्रॉम लाइक टुडे 6 February टिल लास्ट फेब, आई गेस 27 Feb तक 21 डेज़ हो जाएंगे। तो मैंने अपना खुद का एक प्लानर क्रिएट किया है अकॉर्डिंग टू कि मेरे चैप्टर्स कैसे कैसे हैं। तो मैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे तुमको शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से जाके देख लेना कि व्हाट आई हैड मेड इट वाज अकॉर्डिंग टू मी। अब बाकी तुम लोग अपने हिसाब से भी चैप्टर्स आगे पीछे कर सकते हो। बस बेसिक चीज़ यही है कि तुम्हें 21 डेज़ में अपनी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करना है। तो दे आर सम डेज़ जहाँ पे मैंने 2 चैप्टर रखे हैं, लाइक लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन दोनों को एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं बिकॉज लिविंग वर्ल्ड छोटा चैप्टर है एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी उतना बड़ा चैप्टर नहीं है। तो लाइक दैट एक छोटा चैप्टर एक बड़े चैप्टर के साथ मिक्स करके मैंने कुछ ऐसा प्लानर क्रिएट किया है। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली होगी, तो तुम वहाँ से जाके एक बार चेकआउट करना। एंड बाकी कमेंट सेक्शन में बताना तुम अपने व्यूज़ की, तुम्हें क्या लगता है हमें चैलेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर मैं कर रही होंगी तो तुम आओगे कि नहीं आओगे। सो बेसिकली मैं तो पढ़ ही रही हूँ, बाकी चैलेंज में ये हो जाएगा आई विल बी अपलोडिंग व्लॉग्स डेली, आई विल बी अपलोडिंग माई टू डू लिस्ट डेली एंड आई ट्राई टू इंटरेक्ट विद यू गाइज एज मच एज आई कैन। बाकी ना अगर स्टडी चैलेंज हो रहा होता है तो मुझे लगता है कि अगर जब तक व्लॉग डेली बेसिस पे नहीं है इतना कनेक्टेड नहीं फील हो रहा होता है। तो इस बार आई विल बी, अगर चैलेंज हो रहा हो तो आई विल ट्राई टू बी प्रॉपर कंसिस्टेंट। एंड या एंड काफ़ी लंबे अरसे के बाद व्लॉग आया कल वाला, तो तुम में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं कहाँ थी इतने टाइम से। तो एक्चुअली मेरे भाई की शादी थी, सो उन्हीं सारी चीज़ों में मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। बिज़ी एज इन मतलब घर में शादी होती है तो तुम हो ही जाते हो, तुम जितना भी ट्राई करो कि हम पढ़ाई करेंगे पर वो चीज़ नहीं हो पाती है। सो आई वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ बिजी इन दो स्टफ्स विच आई वॉज इन डीप रिग्रेट। बहुत सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, स्टडी आवर्स डिक्रीज़ हो गए, फोकस नहीं बिल्ड हो पा रहा है, बहुत नींद आ रही है क्योंकि मैं बहुत दिन से स्लीप डिप्राइव चल रही थी। सो आई एम इनटू दैट जोन जहाँ पे मैं फिर से सारी चीज़ें बिल्ड कर रही हूँ। बट सूनर लेटर आई विल बी बैक ऑन ट्रैक। तो लाइक वेरी सून, मतलब फिर से होने ही लगा है, सारी चीज़ें पढ़ाई होने ही लगी है। तो बस यही ये व्लॉग था तुमको इन्फॉर्म करने के लिए अबाउट द चैलेंज एंड एवरीथिंग। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब मेरा गला भी थोड़ा थोड़ा सा बैठा हुआ है, सो चलो फिर मिलते हैं तुम मुझसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी कमेंट सेक्शन में सब कुछ बता देना। एंड मीन वाइल यहाँ पे बेसिकली व्लॉग के बारे में तो अगर बताया नहीं हमने,
तो हियर आई एम रिवाइजिंग ग्रेविटेशन लाइक प्रॉपर अपने डिटेल नोट्स के साथ रिव्यू करते हुए देन क्रिएटिंग शॉर्ट नोट्स। लाइक मेरा फिजिक्स का ही थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, तो फिजिक्स में भी नाउ आई एम लाइक प्रॉपरली रिवाइजिंग एवरीथिंग एंड मेकिंग शॉर्ट नोट्स। Guys, by the way, I changed my desk setup a bit. मैंने अपना लैपटॉप साइड में कर दिया बिकॉज नाउ आई वोंट बी लाइक रियली वॉचिंग लॉट्स ऑफ लेक्चर्स, तो मैंने लैपटॉप एकदम किनारे कर दिया। एंड अपना ये डेस्क वाली क्लॉक मैंने बहुत टाइम से लेके रखी थी, ये नहीं लगाई थी, तो आई पुट इट देयर। पर ये क्या वायर से चलती है तो इसका थोड़ा इशू हो रहा था, इसलिए मैं इसको प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे मेरे 5 आवर्स में ग्रेविटेशन कंप्लीट हो गया था एंड यहाँ पे मैं अपना 20 डेज़ वाली प्लानिंग करने लगी थी। तो इन्हीं प्लानिंग के चक्करों में आई डिसाइडेड टू रैप अप द व्लॉग हियर ओनली एंड आई मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड इफ यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, thanks for watching.